Okay, so I think we should begin now. We should not waste your time who have joined correct time. So mostly the session will be in I'll try to make it in English because but Hindi as a mother tongue it will come in between. But okay, अगर किसी को भी anyone any problem in understanding what am I saying or like so just stop me there itself and ask me. Okay. So first thing, am I audible? Am I visible? The screen is visible. Am I audible? Okay, then let's start. First thing, मतलब, why we have started this, like, because me and Mukul both are getting so many messages regarding like GS subjects, any all GS subjects, how to start and from where to start. But we were holding on to it, like because we have multiple times already told you that November is not the right time to start prelims, or early December is not the right time to start prelims. But now for many people, the time is almost there when they are going to plan or like they are going to start prelims in next 10 days, 15 days. So now we thought that now we can like start something of prelims, first prelims also. So that's why it's going to be first session, economics. Economics, as you all know, it consists around like 15 to 20 questions, directly or indirectly, out of 100 will be from economics. Okay, somewhere around like 8 to 10 questions from the static economics, like you can easily answer using the concepts of economics. Okay, and remaining like somewhere around 5, 6, 8 the current affairs, basic current affairs from economic survey and that year current affairs. So that thing. Okay, okay, so let's just move forward. So anyone who have joined like the first time, who is taking the session first time. So a little bit about me and Mukul. I'm Vaibhav. I graduated from IIT Delhi in 2021 and I've written three mains 2022, 2023 and 2024. I've cleared IFS all the times and also like prelims and same for the Mukul. He has written 2022 and 2024 mains. Okay, so economics. See, the thing, same thing. Like just now I was saying, economics, so you'll get around 15 to 20 questions out of total 100 questions. So it is a real important topic. Without economics, I don't think you can clear prelims. Let me just be blunt and say right away that without economics and polity, uh, like in no case you are going to clear prelims. Okay, so like you need to definitely give a good amount of time, a good chunk of your time for prelims to economics, and you should basically and it's like that. It's also an easy thing. Like that's not so difficult. Like 8 to 10 questions will be easy, and one question जो एक question हर साल repeat होता है कि money multiplier increase like how the money multiplier is going to be increased, and four options are there. Even I remember the correct option now. When the banking habits of the people increases or something. So that is economy, easy part, जो static part है, जो basically हमारा banking, RBI, basic जो currency related है, उसके अलावा normal export import, which stuff is more exported, which are more imported. Okay, these kind of things, these are easy stuff. Like I remember, like every year they ask generally one question on export and imports, and that they give options like that. Ki if you have read basic economics, you know that India is a trade deficit country. We export this stuff more, we import this stuff less. Like then you can answer those questions. Like I remember, I think 2022 prelims question in which they have asked ki uh, which of the following items have been the most value in most imports or something like that. And in the option, you can easily see that the vegetable oil will be the answer. Why? Because the other options were wheat, rice, sunflower, like that. Not sunflower, some sugarcane or something like that. So you can easily like, okay, India imports सबसे ज़्यादा vegetable oils करता है. Even अब तो like you should know कि palm oil हम इंडोनेशिया वगैरह से करते हैं. सनफ्लावर ऑयल हम ऊपर यानी यूक्रेन वगैरह से करते हैं और सोयाबीन हम जनरली अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका से करते हैं. So all these things, these are easy questions. Like literally you can easily answer. Again, repo rate पे एक क्वेश्चन आता है that is like repo rate.
दिस इज लाइक इस साल भी आएगा, हमेशा आएगा। आई एम गिविंग यू दिस। सिमिलरली आरबीआई की वो इसी पे आएगा, हॉकिश पॉलिसी और वॉट एवर। ठीक है। अभी रिसेंटली चल रहा है हमारा डिजिटल करेंसी और बिटकॉइंस और समथिंग, इसका तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए, इससे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ये मत सोचना कि आ चुके हैं, बिकॉज आएंगे, बिकॉज दीज आर द न्यू थिंग्स। डिजिटल रुपी 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि दीज आर द न्यू थिंग्स ना, इट विल कम। दीज आर नॉट वन ऑफ करंट अफेयर की, ठीक है, दो 2022 में आ गया तो 2023 में नहीं आएगा, नहीं पढ़ेंगे। दीज आर नॉट दैट। इट इज प्रॉपर कॉन्सेप्ट, डिजिटल रुपी इज गोइंग टू बी रियलिटी इन फ्यू ईयर्स। सो दीज आर थिंग्स लाइक, ये बेसिक है, ये स्टैटिक है, दिस इज नॉट इन करंट अफेयर, दिस इज स्टैटिक। हाउ रेपो रेट इंक्रीज डिक्रीज, दिस इज अ स्टैटिक थिंग। ओके। तो all these things you should know, बजट में बेसिक्स, what is capital, what is capital account, और what is revenue account. You should know these things. These are static. What is revenue? That the recurring payments जो बार बार होते हैं, टिपिकली जो हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, जो एक साल से कम में हो जाते हैं। और कैपिटल एसेट्स या कैपिटल अकाउंट कौन से होते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो एक साल से ज्यादा के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भी यूपीएससी बहुत बार पूछता है कि जैसे अब फैक्ट्री में यू हैव बॉट अ मशीनरी, तो मशीनरी तो अब तुमने खरीदा है, तो ऑब्वियसली तुमने एक साल के नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, तो दैट इज एन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, लेकिन अब तुम सैलरी दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, दैट इज अ रेवेन्यू। तो ये यूपीएससी लाइक नॉट, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर किसी ना किसी फॉर्म में यूपीएससी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। ओके। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज कि ये जो 9 से 11 क्वेश्चन है, एटलीस्ट you should score 6 to 7 here itself, because यहाँ पे like if you are scoring here, these are easy questions, तो तुम्हारा आगे जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीव होता है, तुम आगे और कॉन्फिडेंस से जाते हो कि जब तुम्हें दिखता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है तुमने सही कर दिए हैं। जो इजी जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, और जो मतलब तुम पहले करके आए हो या तुम्हें कंसेप्ट पता है, और वो एग्जाम में अगर गलती से आ जाता है, गलती से नहीं यूजुअली आता है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, उसकी नेक्स्ट दो क्वेश्चन और तुम सही करोगे, सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं। तो ऑल, तो इसलिए स्टैटिक इज मोर इम्पोर्टेंट, स्टैटिक एंड इजी पार्ट। सिमिलरली करंट अफेयर स्कीम्स, तो ये हम आगे देखेंगे मोस्टली। करंट अफेयर्स जो होते हैं, आरबीआई ने कुछ नया कर दिया, कोई नए रेगुलेशंस ले आए, उस पे आ जाएंगे। हमारे बजट से रिलेटेड, बजट में कोई नई स्कीम आ गई, गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, कोई नई रेगुलेशन आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटाज वगैरह आते हैं उनसे आ जाएगा। ठीक है। सो हाँ, सी अगेन सेम थिंग। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं लास्ट में बोल भी रहा था, कॉन्सेप्ट। स्टैटिक शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, कि करेंसी डेप्रिसिएशन से, सॉरी माय राइटिंग, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो बी विद मी। हाँ, तो करेंसी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ेगा या कम होगा, दिस इज लाइक द एवरग्रीन क्वेश्चन। तो अब ये अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक है कि डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एक्सपोर्टर्स को कैसे फायदा होता है और इंपोर्टर्स को कैसे फायदा होता है, वॉट एवर, देन यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब जैसे हर साल, मतलब पिछले 2 सालों से इंडियन करेंसी स्लाइडिंग डाउन, तो ऑब्वियसली द क्वेश्चन विल बी अराउंड दिस, कि इंडियन करेंसी स्लाइडिंग डाउन, तो व्हाट विल हैपन टू इंडियन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट, चार ऑप्शन बन के आ जाते हैं, दिस विल इंक्रीज, दिस विल डिक्रीज, एंड दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 2022 आई थिंक और 23 में भी रीर और नीर पे क्वेश्चन आया था। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर मतलब बेसिकली बिल्कुल ही मतलब पता नहीं था, या कौन पढ़ता है ऐसे कॉन्सेप्ट, बट नो, मैं पढ़ के गया था। पढ़ा कैसे? मतलब बेसिकली बस मैंने इतना याद रखा था कि जो एक्सचेंज रेट में होता है, बेसिकली इफ एक्सचेंज रेट में इंक्रीज होने से अगर हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होते हैं, तो रीर और नीर में उल्टा होता है। बस इतना याद करके गया था, मेरा वो क्वेश्चन हो गया था बस। ठीक है। और ये जब हम एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं उसके बाद वाले टॉपिक में आता है, कि मतलब तुम किसी भी सोर्स से पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हमें कंसेप्ट पता चलेंगे ओवरऑल। ठीक है। अब जो नेक्स्ट थिंग आती है, हाँ, दिस इज मोर मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे तुम्हें 4 से 5 डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे इकोनॉमी के, मतलब इकोनॉमी प्लस एग्री मान लो या इकोनॉमी मान लो। ठीक है। दोनों इकोनॉमिक सर्वे में डेटा होता है, लाइक 2023 अगर किसी ने दिया है तो उन्हें याद होगा कि उसने ऑप्शन में बना दिया था कि इंडिया 3.2% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का, मतलब जो है इंडिया का 3.2% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इंडिया में से होता है, या इंडिया इज अ पार्ट। बट दैट इज नॉट, इकोनॉमिक सर्वे में 1.8% गिवन था वो चीज।
तो जब हम ये पढ़ रहे हैं बेसिक इंडिया की सिचुएशन क्या है, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, वर्ल्ड में, ये थोड़ा बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए। ये करते ही वो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था, आई रिमेम्बर। तो अगर तुम्हें पता है कि असर्शन गलत है, क्वेश्चन खत्म, आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है तुम्हें। ठीक है। तो ये मतलब एक बेसिक थिंग, अभी जब फैब में आता है, ये यूजुअली फैब फर्स्ट वीक में आता है आजकल। तो इधर टेक एनी कंपाइलेशन, मतलब कोई भी कोचिंग यार, मतलब जनरली मैं तो मृणाल सर के वो लाइक 10 to 15 डेज के बाद उनकी एक डेडिकेटेड वीडियो और कुछ नोट्स आ जाते थे, मैं वो देख लेता था। यू कैन लुक, मतलब टेक एनी सोर्स यू वांट जिसमें ये कंपाइलेशन हो मेजर थिंग्स का, नो इश्यूज। सिमिलर गवर्नमेंट स्कीम्स में वही, जो भी नई गवर्नमेंट स्कीम है जैसे पीएम विश्वकर्मा, तो अब उसमें उसने 18 क्राफ्ट्स बताए हैं। तो ऑप्शन में वो बेसिकली क्या देगा कि कुछ ऐसा क्राफ्ट दे देगा जो उसमें नहीं है। अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि विश्वकर्मा इज फॉर आर्टिसंस, जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस होते हैं, लाइक पॉटरी मेकिंग एंड आयरन स्मिथिंग, ऑल दीज थिंग्स, कि जो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप आ। लेकिन अब वो कुछ उसमें अलग सा दे देगा यार, लाइक गोल्ड स्मिथ दे देगा मे बी। आई डोंट नो गोल्ड स्मिथ है या नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो तुम्हें वहां पे थोड़ा लॉजिक पता होना चाहिए कि नहीं, ये दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल, तो ये इस स्कीम का पार्ट नहीं है, और थोड़ा बहुत स्कीम का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिक तुम्हें गवर्नमेंट स्कीम से होना चाहिए, और टिपिकली वो गवर्नमेंट स्कीम जो लास्ट 1 ईयर्स में न्यूज में है या लॉन्च हुई है। ठीक है। ठीक है। करंट अफेयर्स तो फिर ओवरऑल है ही, उनमें से जो भी आएगा। ओके। हाँ, सोर्सेस कहाँ है। ओके। ठीक है। सोर्सेस क्या रखें यार, दो तीन चीजें हैं इसमें, मतलब इसमें दो तीन चीजें भी हैं, और अलग अलग लोगों के लिए अलग वो होता है। जैसे कि पर्सनली ज्यादातर लोग या तो मृणाल सर के नोट्स या क्लासेस से करते हैं। सेकंड, आई थिंक विवेक सिंह और सम आई डोंट नो सर, उनकी बुक से करते हैं। और थर्ड सोर्स होता है ये, आईएएस के मॉड्यूल्स पॉपुलर हैं या फिर तुम्हारा जो भी कोचिंग है, नो नो इश्यूज। अब देखो ये तीनों अलग अलग उसके लिए हैं, मतलब लोगों के लिए हैं, मतलब ठीक है। अब समवन, मतलब आइडियली ये केस नहीं होना चाहिए कोई पहली बार पढ़े, बट इफ समवन स्टडिंग इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो माय सजेशन वुड बी, इफ यू आर फ्रॉम हिंदी बेल्ट, लाइक हिंदी बेल्ट नॉर्थ इंडिया से हो, तो फर्स्ट ट्राई फ्रॉम मृणाल सर लेक्चर्स। ओके। वाई हिंदी बेल्ट, क्योंकि वो थोड़े मीम्स वगैरह और हिंदी में थोड़ा चलता है, तो सदर्न पीपल के लिए इट विल गेट डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं, फर्स्ट ट्राई दिस, एंड ओनली फॉर दोज पीपल हु हैव येट टू स्टडी इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स और लाइक फ्रॉम बेसिक्स, उन्हीं के लिए बता रहा हूँ मैं। बाकियों का भी मैं आता हूँ। ओके। तो लेकिन फिर इश्यू आ जाता है उनको कि मृणाल सर के लेक्चर्स आई थिंक अब 60 के अराउंड पहुंच चुके हैं, वैसे तो उन्होंने अब सेपरेट कर दिया है प्रीलिम्स और मेंस को, बट स्टिल आई थिंक 40-50 के अराउंड लेक्चर्स होते हैं। और नोट्स अराउंड बहुत बल्कि हो चुके हैं, 1000-1200 पेजेस। बट अगेन he has divided those notes, probably 600 to 800 for prelims and 400 something for mains, some sort of division like that. Okay. So यार बेसिकली करना क्या है, जो लोग मृणाल सर से पढ़ रहे हैं, मृणाल सर से के नोट्स देख रहे हैं, उनको बल्कि लगता है, मैंने भी पढ़ा था। ठीक है। तो होता क्या है कि बेसिकली दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, उनके कॉन्सेप्ट वो हमें समझ आ जाने चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा है, हर चीज को बहुत ज्यादा डिफाइन कर रखा है, या बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। कई कई बार बहुत सारी चीजें हो गई हैं, जैसे कि आई रिमेम्बर उनके जो फर्स्ट हैंड आउट है उसी में एप्स वगैरह है। आरबीआई मनी ऐप है, जिसमें कि है ब्लाइंड पीपल, रोशनी ऐप सॉरी, जिसमें ब्लाइंड पीपल को जो करेंसी नोट्स है उनका समथिंग वॉइस रिकॉग्निशन और समथिंग विल कम। तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रेलेवेंट, ये तुम खुद भी समझ सकते हो एक बार पढ़ने के बाद। या फिर उन्होंने 3 पेजेस में ये दे रखा है कि आरबीआई ने 2022 में क्या किया था, 2023 में कौन सी पॉलिसी आई थी, मतलब रीजंस के साथ। उनका पर्पस ये है कि तुम्हें समझ आए, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया तो वो याद नहीं रखना है। ठीक है ना। सिमिलरली सिमिलरली इंडेक्स, उन जो भी हमारे इंडेक्स हैं, वेट, आई थिंक हाँ, मृणाल सर के नोट्स में से इग्नोर क्या करना है, या फिर वो जो 1200 पेजेस हैं उनको कैसे हमें वापस रिवाइज करना है। ठीक है।
तो ओल्डर स्कीम्स जो होंगी टिपिकली लेट्स से जो कोविड टाइम पे आई स्कीम्स है, उस समय बहुत आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो आया था, अब उसका रेलेवेंट नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस इतना नहीं है। सिमिलरली कुछ स्कीम 2021 में या 2022 में आ गई होंगी और अब न्यूज में भी नहीं है, लेकिन वो अगर तुम्हें मिल जाए तो उसका रेलेवेंस नहीं है, उन्हें काटो और आगे बढ़ो, ठीक है। उनका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। सिमिलरली कुछ नॉन मेजर स्कीम्स होती हैं, ठीक है। नॉन मेजर स्कीम्स मतलब कि दोस्त की ठीक है, मतलब आई गई, अब उनका इतना वो नेम नहीं है या फिर तुम्हें इतना उनका फर्क नहीं, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब नॉन मेजर स्कीम याद रखना भी मुश्किल है। ओके, सो नॉन मेजर स्कीम, लेट्स से ओके सोलर पार्क स्कीम यू कैन से, मतलब वर्ड से समझ आ रहा है, सोलर पार्क स्कीम सोलर पार्क के लिए आई होगी और 2022 या 2020 में आई है, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, है ना। सो या पीएम कुसुम, पीएम कुसुम अब ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी है, आई थिंक 2017 या 18 की स्कीम है ना। और वही सोलर पावर्ड मोटर्स वगैरह या फिर इसके लिए होती है, फार्मर्स के लिए। तो बस इतना बेसिक पता है, उसके बाद उसको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग और बहुत कुछ माइनर न्यूज है, ठीक है, तो वो भी हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस वे इसे रिवाइज करना है। उसके बाद जब हम सेकंड टाइम पढ़ेंगे इसे, मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तुम्हारे टिपिकली लाइक मेरे जब मैंने बनाए थे तो अराउंड एंड अराउंड 100 पेजेस में हो जाने चाहिए, ठीक है। डू दिस, ठीक है। ये दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर यूजिंग मृणाल सर एज देयर सोर्स और मृणाल सर लेक्चर्स और नोट्स एज देयर सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज विवेक सिंह बुक। तो बुक में तो मतलब जब मैंने देखा तो मुझे इतना कोई इशू लगा नहीं, सब कुछ चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, ओके। चैप्टर वाइज डिवाइडेड है तो जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। वही सेम चीज करनी है, एक बार पढ़ने के बाद अगेन मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं हु आर यूजिंग देयर ओन कोचिंग नोट्स, या तो टू थिंग्स आते हैं। देखो, कोचिंग वाले, क्योंकि बहुत कोचिंग वाले या सभी कोचिंग वाले जो फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, दे यूज द कॉम्प्रिहेंसिव मेथड। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब वो दोनों का मिक्स पढ़ाते हैं, मतलब मेंस का भी वो तभी पढ़ाते हैं, प्री का भी वो तभी पढ़ाते हैं। तो उनके नोट्स थोड़े ब्रॉड होते हैं, ठीक है। बट ये तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है कि तुम्हें जाके अपने नोट्स में थोड़ा सा दोबारा से भी उन्हें री एवेल्युएट करना है। अब जब तुम उन नोट्स को पढ़ो, whenever you are going to read that, उसमें से थोड़ा सा स्टफ मेंस का सेपरेट कर लो, सेपरेट इन द सेंस कि उसको किसी हाइलाइटर, डिफरेंट हाइलाइटर से कर लो, ठीक है। या फिर कुछ उस पेजेस पे कुछ मार्क कर लो कि ये स्टफ सिर्फ और सिर्फ मेंस का है ना। फॉर एग्जाम्पल, टिपिकली जो बजटिंग वाला सेक्शन आता है, ग्रीन बजटिंग और जेंडर बजटिंग, ऑल दीज आर फॉर मेंस, लाइक तुम्हें प्रोज कॉन्स ऑल दीज थिंग्स पता होनी चाहिए, तो दैट इज फॉर मेंस, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा अलग कर लो। अभी अभी जब तुम पढ़ रहे हो तो वो पेज तुम्हें तुरंत पलट देना है, यू नीड टू लाइक स्विच टू अदर अदर पेज, कि हाँ ये तो आता ही नहीं मेंस में, ठीक है। और आई वुड ऑल्सो सजेस्ट इन लोगों को भी कि ऐसा करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। एंड में तुम्हारे पास 100 पेजेस शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो तुम लास्ट मंथ में रिवाइज करो, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स, बेसिक थ्री सोर्सेज आर देयर पॉपुलर, मृणाल सर नोट्स, विवेक सिंह बुक, श्री राम आयस के मॉड्यूल बहुत लोग पढ़ते हैं, यू कैन रेफर दैट। और खुद की कोचिंग, जिन्होंने कोचिंग ली उन्होंने अगर नोट्स बनाए और उनको बिलीफ है वहां से समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, उसे यूज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद अब देखो स्ट्रेटेजी क्या रहती है ब्रॉडली। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स जो हमारे बेसिक नोट्स से हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पी वाई क्यूज, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यार देखो, लेट्स अज्यूम तुमने पढ़ा, बैंकिंग पढ़ लिया, बैंकिंग, ठीक है। तो अब तुम्हें जाना है उसके पी वाई क्यूज देखने हैं। मृणाल सर के नोट्स में तो बेसिकली जो वो कुछ टॉपिक पढ़ा था उसी के बाद उन्होंने पी वाई क्यूज दिया हुआ होता है, बट नो इश्यूज, आई थिंक तुम्हें इजीली मार्केट में किसी का भी कंपाइलेशन मिल जाएगा, सो जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। पी वाई क्यूज करना है। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट कैसे लगाना है, ये प्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट पीपल डोंट डू दिस, उन्हें लगता है कि हमें तो सब आता है या वी हैव टाइम और वॉट एवर, बट मोस्ट पीपल डोंट डू दिस। और इफ दे
are doing this, then they don't do this correct way. Like ये तो मैं एक्सपर्टीज के साथ बोल सकता हूँ, बाकी चीजों में आई डोंट नो सबका होता होगा, बट प्रैक्टिस टेस्ट कैसे देने हैं, जस्ट लिसन केयरफुली। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यू नीड टू गिव सेक्शनल टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं डायरेक्ट फुल टेस्ट दे दो एंड ऑल दीज थिंग्स, नो, गिव सेक्शनल टेस्ट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, देखो सेक्शनल टेस्ट, लेट्स अज्यूम इकोनॉमी के 3 सेक्शनल टेस्ट हैं। व्हाट डज इट मीन, इकोनॉमी 3 पार्ट में डिवाइड करके पूछी गई है। अब अगर कोई पर्सन एक पेपर बना रहा है 100 क्वेश्चन का, और सिर्फ वो क्वेश्चन ले रहा है बैंकिंग, बजट, है ना, और लेट्स से एग्री, वो 100 क्वेश्चन सिर्फ इन तीनों में, तो उसको मल्टीपल क्वेश्चन बनेगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा आ पाएंगे, बजाय कि तुम सिर्फ दो 100 क्वेश्चन के फुल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट दे दो, तो वो इतना नहीं करेगा। अब देखो इसके बाद भी तुम्हें क्या करना है, यहाँ खत्म नहीं हुआ है कि इसके बाद तुम्हें मिनिमम 2 टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव या फुल इकोनॉमिक्स के टेस्ट देना है। इन 5 टेस्ट के साथ तुम्हारी इकोनॉमी एक बार के लिए खत्म होगी। गेटिंग माई पॉइंट, मिनिमम 3 टेस्ट सेक्शनल एंड फुल टेस्ट मिनिमम 2। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है, ये टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आएगा मेजर इशू जो प्रीलिम्स में होता है। बस लोग टेस्ट देके छोड़ देते हैं। ठीक है, टेस्ट दे दिया, मार्क्स काउंट कर लिए, अच्छा है, ओके ओके, मुझे इकोनॉमी आ गई, आई एम द लाइक किंग ऑफ इकोनॉमी। गंदे हो गए, ओ गॉड व्हाट एम आई स्टडिंग, नोट्स अच्छे नहीं है, मार्केट में दूसरे नोट्स ले लूंगा, ऑल दीस थिंग्स, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ओके, तुमने टेस्ट दिया, लेट्स अज्यूम टुडे मॉर्निंग you have given test. Okay, so what you need to do is evening या फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लो या whatever, analyze that test. अब एनालिसिस कैसे करना है, that is more important. Okay, तो दो तरीके से एनालिसिस होता है। फर्स्ट इज करेक्ट क्वेश्चन, मतलब करेक्ट आंसर, तुमने करेक्ट आंसर लिख दिया उसका, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर इट मींस यू नो समथिंग, तो यू जस्ट रीड द सॉल्यूशन, एंड इफ यू फाइंड समथिंग न्यू, अगर तुम्हें कुछ नया मिलता है सोल्यूशन में कि ठीक है तुम्हें जितना पता था उससे तुमने यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर, बट तुमने जब सोल्यूशन पढ़ा तुम्हें लगा अच्छा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या फिर अच्छा ये मेरा इसलिए सही हो गया लेकिन मैं तो कुछ और सोच रहा था, देन राइट दैट, इफ समथिंग न्यू राइट, रेलेवेंट ऐसे सब कुछ नहीं, राइट। हाँ, अब ये राइट वाला जो सिचुएशन आती है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, व्हाट दे विल डू इज दे विल मेक अ सेपरेट कॉपी, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, मतलब मैंने अपने किसी भी टाइम में वो नहीं किया, और आई सजेस्टेड दैट माय टू माय रूममेट आल्सो, ही आल्सो क्लियर्ड प्रीलिम्स विद दैट स्ट्रेटेजी ओनली, कि राइट कहाँ लिखना है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। कई लोग बोलते हैं कहीं भी लिख दो, नहीं, ये मैंने देख लिया है बहुत जगह, कहीं भी नहीं लिखना है। राइट ऑन क्वेश्चन इटसेल्फ, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। सोल्यूशन जब तुम देख रहे हो, मे बी वो बुकलेट के पीछे होता है या फिर तुम अलग से पीडीएफ में देख रहे हो, तो अगर तुम्हें कुछ भी नया मिलता है सोल्यूशन में, अगर इन केस ऑफ करेक्ट आंसर, या फिर तुम्हें लगता है ये याद होना चाहिए, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन के आसपास लिख लो या क्वेश्चन में लिख लो, ठीक है, आगे आके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, अभी मैं बताता हूँ मैं यूजफुल क्यों हो गए। नेक्स्ट थिंग होगी, तुमने रॉन्ग कर दिया, रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर दिया था, उसका एनालिसिस करना है। रॉन्ग आंसर के केस में दो थिंग होती है, एक तो होता है फैक्चुअली रॉन्ग है, कि तुम्हें फैक्ट नहीं पता था, तो ठीक है फिर वही थिंग है, याद करो और लिख लो, है ना, इफ फैक्ट। और दूसरा है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, या फिर तुम में कॉन्सेप्ट मिसिंग लग रहा था, तो अगेन कॉन्सेप्ट मिसिंग में उसको पूरा पढ़ो, जो भी सोल्यूशन गिवन है रीड इट कंप्लीटली देयर, बिकॉज यू आर लैगिंग इन कॉन्सेप्ट। ओवरव्यू नहीं करना है, पेज स्क्रिबल नहीं करना है, पढ़ो उसे, ओके। और उसके बाद उसे भी लिखो, और अपने नोट्स में जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो वहां भी लिखो कि ये कॉन्सेप्ट
रेपो रेट या रिवर्स रेपो मेरे में नहीं था, या नया जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आरबीआई की है, ये वो मेरे नोट्स में नहीं था, यहाँ पूछा गया है ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। अब होता क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वाई टू राइट ऑन क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, बिकॉज जब तुम मई में रिवाइज करोगे तो तुम्हें बार बार पेज पलटना नहीं पड़ेगा। एक तुम्हारा प्रीवियस दिया हुआ पेपर तुमसे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में तुम्हारा एक पेपर रिवाइज हो जाएगा। एंड बिलीव मी, तुम कुछ भी गलत कर रहे हो वो तुम्हें ज्यादा दिन याद रहता है, भले ही कि तुम सही कर रहे हो। लाइक लिटरली इफ यू डू समथिंग रॉन्ग एंड अगर तुम उसे 3 महीने बाद देखोगे दोबारा, तो विल रिमेम्बर, अच्छा अच्छा ये मैंने इसलिए गलत किया था, ओ नाउ आई रिमेम्बर। और साथ वाला कॉन्सेप्ट भी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्वेश्चन में ही लिखना है। जो भी तुम एनालिसिस करो पेपर का, राइट ऑन द क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि जब तुम बाद में मई के महीने में रिवाइज करोगे, दिस इज मंथ नॉट मे। ठीक है। मई मंथ में जब तुम रिवाइज करोगे, प्रीलिम से 20 डेज पहले, 25 डेज पहले उस पेपर को रिवाइज करोगे, तो लिटरली इट विल टेक 30 मिनट्स टू 1 आवर और अब तुम्हारा एक पेपर रिवाइज हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रेटेजी यार। पढ़ो कॉन्सेप्ट। ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ा, पीवाईक्यूज किए बेसिक, उसके बाद टेस्ट तरीके से लगाया। ठीक है। टेस्ट तरीके से लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग लगा के बस छोड़ देते हैं फॉर द सेक ऑफ इट कि अरे हमने तो 5 टेस्ट लगा लिए, यही बोला जाता है, हम तो हो गए आगे। बट दिस इज नॉट द वे। सिमिलरली करंट अफेयर्स, सेम थिंग, जो भी पीछे बोला था। बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, कहीं से भी पढ़ो, आई डोंट केयर, लेकिन अच्छे से पढ़ो। एटलीस्ट 2 टाइम्स की इसकी तुम्हारी रीडिंग या रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि इससे सिर्फ इकोनॉमी नहीं, एग्रीकल्चरल और भी बहुत सारे एरियाज, इन्वायरमेंट के कई बार आ जाते हैं नई स्कीम्स या कुछ, तो वो एटलीस्ट 2 बार का रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर। करंट अफेयर तो बाकी जो मंथली मैगजीन कर रहे हैं उसमें भी इकोनॉमी कवर होगा, सो हो जाएगा मोस्टली। आई थिंक कुछ मिस तो नहीं हुआ है। सोर्सेज हो गए हैं। स्टार्ट कैसे करना है आई टोल्ड यू। इग्नोर क्या करना है ऑलरेडी टोल्ड यू। शॉर्ट नोट्स ओके। ठीक है यार, शॉर्ट नोट्स वैसे तो मैंने अभी बता दिए, बट अगेन लेट्स सी। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं, कई लोगों को मे बी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, या फिर मतलब मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को इश्यूज होता है कि शॉर्ट नोट्स, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। आखिर शॉर्ट नोट्स में क्या लिखें। तो यार 2-3 चीजें होती हैं। प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स थोड़े से फैक्चुअल ओरिएंटेड होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के शॉर्ट नोट्स अलग अलग होते हैं। प्रीलिम्स के फैक्ट्स बेसिस पे शॉर्ट नोट्स होते हैं। लेट्स अज्यूम अभी क्या चल रहा है, एमपीसी चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो न्यूज में है क्योंकि नए आरबीआई गवर्नर है। तो अब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में 3-4 चीजें होनी चाहिए। हाउ मेनी मेंबर्स, या फिर रुको मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स बना के दिखा देता हूँ इसका यहीं पे। ठीक है। 6 मेंबर्स, ऐसे लिखा होगा। 3 आरबीआई, 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ओके। इस तरीके से होना चाहिए। उनका टर्म गवर्नमेंट अपॉइंटेड वालों का 4 इयर्स। ओके। इनका एक्स ऑफिशियो कि जब तक ये अपने ऑफिस में है। ओके। देख लेना एक बार, मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, सो जस्ट देख लेना एक बार जो भी है। ठीक है। मेरा पर्पस यहाँ तुम्हें नोट्स बनाना सिखाना है। ठीक है। कितनी मीटिंग मैंडेटरी है ना। कई लोग बोलेंगे कि 6 मीटिंग क्योंकि हर 2 महीने में नो। एक्ट के अकॉर्डिंग 4 मीटिंग्स इन अ ईयर आर मैंडेटरी। ये दिस इज यू शुड रिमेम्बर। ठीक है। और वो डिसाइड क्या करते हैं, दे डिसाइड ऑन रेपो रेट, जिसे हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। इनका मैंडेट क्या है, व्हाट इज द मैंडेट, टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक। चेक कितना, 4% ±2%। ओके। ये 3-4 चीजें हैं। अब थोड़ा सा और भी है कि कौन चेयर करता है, मेजोरिटी कैसे होता है, वो सब एक बार पढ़ लो। ठीक है। उसमें इतना लोड नहीं है। ठीक है। अब इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बल्कि बनते हैं क्या, 2022 में आया है आई थिंक, हाँ। ठीक है। 2022 में क्वेश्चन है। तो कुछ भी बन सकता है यार। 6 मीटिंग्स है ये बोल देगा तुम्हें ऑप्शन में, या फिर तुम्हें बोल देगा कि नहीं वो रिवर्स रेपो और जो हमारे बाकी रेट्स होती हैं, एमएसएफ वगैरह, वो ये लोग डिसाइड करते हैं, ये ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है। या फिर ऑप्शन में आ जाएगा तुम्हें कि
इन्फ्लेशन के साथ साथ उनका इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट टारगेट भी उन्हें दिया जाता है, तो ऑल दीज थिंग्स ऑप्शन में आती है। बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड अ शॉर्ट नोट्स वेल, जिसमें कि सारे मेजर फैक्ट्स हैं उस चीज से रिलेटेड, ये कॉन्सेप्ट तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, तो इट विल सफाइस। जब तुम दोबारा इसे पढ़ोगे तो इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। सो शॉर्ट नोट्स का ये है, और बाकी तो बेसिक देखते हैं आगे। बजट इकोनॉमिक सर्वे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि एटलीस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 days आफ्टर आफ्टर बजट। जो नेक्स्ट डे ले आते हैं ना बहुत सारे कोचिंग, डोंट फॉल फॉर दैट। उन लोगों ने कुछ खुद ने एनालिसिस नहीं किया, दे आर जस्ट की मार्केट में पहले हम आ जाए, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वेट फॉर 5 to 10 days, देन गो फॉर एनी कंपाइलेशन, गुड कोचिंग कंपाइलेशन। और मृणाल सर्स विन सीरीज होती है जो फ्री होती है, विन सीरीज यूट्यूब पे होती है, तो वो भी 1 या 1.5 घंटे की वीडियो में 1-1.5 hours ही विल एक्सप्लेन, ओके। तो नो इश्यूज बजट और इकोनॉमिक्स अभी दोनों में, ठीक है। और तो बाकी ये यार, बेसिकली मी एंड मुकुल बोथ आर थिंकिंग कि सम सॉर्ट ऑफ की प्रैक्टिस के लिए डेली के 5 क्वेश्चन जीएस के डाले जाए, तो इसमें ठीक है, देखते हैं थोड़ा ग्रुप में एंगेजमेंट कैसा रहता है, देन वील डिसाइड। ओके, ये भी बहुत कॉमन वो है कि कितना टाइम लगता है, दिस इज वेरी पर्सनल, ओके। फॉर मी, आज इफ आई डू नाउ, इट टेक्स मी 7 days, बट जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने, तब इट टुक मी अराउंड 20 plus days, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली स्टार्ट, ओके। सो फॉर एवरीवन दिस इज डिफरेंट, ठीक है। बट नाउ सिंस यू आर preparing for prelims, and hopefully everyone who have attended this session are going to write 2025, because मतलब personally मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर I will write 2027 attempt, 2026 attempt. So for them, this session is not good. I am saying right now, leave, do something else. Not use your time somewhere else right now. This session is for the people who are going to give 2025 prelims. Okay. So for them, ideal economics, since probably will start in January starting, it should take somewhere around 12 to 18 days if you are starting from January. That is the ideal time period. ठीक है। कई लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा है, बट नो, इतने में हो जाए ये बड़ी बात होती है रियलिटी में। ये तब होगा जब तुम सारा दिन इकोनॉमिक्स को डेडिकेट कर रहे हो, देन ओनली एक अच्छे से ये हो पाएगा। मैनी पीपल विल लाइक, नो सर, विल डू इन 8 days, 10 days। यार, होना और उसके बाद उससे क्वेश्चन हो जाना, वो होता है होना, कि अगर तुमने कुछ किया, यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड देन यू आर एबल टू डू इट करेक्टली, क्वेश्चंस करेक्टली, दैट मीन्स कि तुम्हारा एक हो गया है इकोनॉमिक्स। डज नॉट मैटर फिर तो तुम 2 दिन में बुक को पलट दोगे, नो नो। सो फॉर दैट, ideally it should take 12 to 18 days for you to complete economics with test also। टेस्ट तुम्हें कैसे देने चाहिए, लेट मी अगेन टेल यू, कि लेट्स अज्यूम तुमने किसी भी कोचिंग का उठाया सेक्शनल टेस्ट, तो उनका सेक्शनल टेस्ट में जितना सिलेबस 1 में हो गया, लेट्स अज्यूम सिलेबस समथिंग सिलेबस होगा, तो जैसे ही तुम्हारा ये सिलेबस हुआ, लेट्स अज्यूम तुमने फर्स्ट 3 days में सिलेबस पढ़ लिया है जितना भी सिलेबस में है, फर्स्ट 3 days में, देन गिव दिस टेस्ट, डोंट वेट, गिव दिस राइट नाउ। इससे क्या होगा कि तुमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, यू यू विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स नाउ। जो ऑप्शन उन्होंने थोड़े से ट्विस्ट किए हैं, अब तुम उन्हें समझ सकते हो कि नो नो, ये तो अभी अभी मैंने पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। सो गिव दिस टेस्ट। वन मोर थिंग, सेक्शनल जिस भी कोचिंग के दे रहे हो टेस्ट, सेम कोचिंग के देना, बिकॉज हर अकॉर्डिंग डिवाइड करती है सेक्शंस में। तो अगर तुम लेट्स अज्यूम तुमने टेस्ट 1 दे दिया विजन का, और टेस्ट 2 तुम दे रहे हो फोरम का, डोंट डू दिस। यू ईदर गिव वन सिंगल कोचिंग टेस्ट फॉर सेक्शनल्स, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, उन्होंने डिवीजन जो किया है वो उनके अकॉर्डिंग है। तो अगर तुम उनका यूज कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट go for the same coaching for sectional test, okay। Okay, so from my side, this is it।
Now the floor is open to you guys. Ask me questions, whatever you wish, me or Mukul. Hello, good evening, sir.